जब मुझे गुस्सा आता है, आई डोंट थिंक सो आई शुड से दिस, मैं मार भी देती हूँ. Anamoy's makeup studios. This is something that is very cool. Like this whole thing, the whole idea behind it, it must have taken you a lot to actually build into what it is today and what it stands for. What was the journey like? एक्चुअली ऑनेस्टली तो आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया किसी और का था. मेरा फैशन मेरे लिए सब कुछ है ऑनेस्टली. मतलब आई कैन लिव विदाउट क्लोथ्स. मुझे लगता है मैं सांस अटक जाएगी. खाना मैंने मुझे कपड़ों के बिना मतलब मेरे को शायद कुछ फोबिया है कि अगर मैंने एक ड्रेस पहनी मुझे दूसरी बार पहनने में मौत आएगी. मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, मुझे सेक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे बस कपड़े चाहिए. मुझे हर चीज में अच्छे कपड़े चाहिए. अगर मुझे एक गंदी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किस पोजीशन पे है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो कहाँ है क्या नहीं है. मेरा दिमाग उससे ज्यादा महंगा है. Hey guys, I'm Manjari Mukherjee and you are watching me on Pop Diaries channel. Well, Mumbai is monsooning like nobody's business, but I am in this quaint and beautiful Amaru. And while I'm sitting in this beautiful Amaru, I have to tell you that as beautiful as this place is the person that I'm having a conversation with next. एक लंबा सा conversation with someone who is enigmatic, super confident, and she lives by her own rules and doesn't break them for anybody. And I like that fact about her. So, one and only Anisha Garg on Pop Diaries. Thank you. How are you? I'm very good. How are you? I am great and I feel more vibrant now meeting you. I mean, the first time I met her, the hello was only so मतलब इतना sweet था. वहीं पे पता चल गया कि भाई ये वाला तो बहुत smooth ride होने वाला है. But I have to say, I was looking at what you've done up until now and Anamoy's makeup studios. This is something that is very cool. Like this whole thing, the whole idea behind it, it must have taken you a lot to actually build into what it is today and what it stands for. What was the journey like for you? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ आइडिया मेरा नहीं था, आइडिया किसी और का था. मेरा कोलैबोरेशन था किसी के साथ. देन द पार्टनरशिप डिडंट वर्क आउट. luckily we are on a good phase and good place, but sometimes things doesn't work. Of course, मेरा मन obviously. नहीं था पर गिव अप करने का. मेरा मन नहीं था कि जिनको मैं प्रॉमिस करके अपने साथ लेके आई हूँ, जो मैंने टीम बिल्ड किया है, मैं उनको छोड़ दूँ. बिकॉज दो पार्टनर्स में नहीं बन रही है, राइट? Exactly. तो ठीक है, जो भी हुआ उसके बाद आई वॉज लाइक होपलेस एंड हेल्पलेस एट व्हाट टू डू नाउ. बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता था. मैं तो सिर्फ एक काइंड ऑफ इन्वेस्टर थी, काइंड ऑफ लाइक स्लीपिंग पार्टनर थी. देन धीरे धीरे उस जर्नी ने मुझे सिखाया. देन मैंने अचानक से उस आइडिया को, जिस आइडिया से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उस आइडिया को इस प्लेस में इम्प्लीमेंट किया. एंड नाउ वी आर हियर, वी आर वर्किंग विद मल्टीपल पीपल, मल्टीपल पर्सनैलिटीज, एंड वी आर डूइंग मल्टीपल वर्क. एंड ऑनेस्टली अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरी टीम की वजह से नाउ आई हैव गिवन देम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अब तुम्हारा है ये. Now I'm working on myself finally, that I'm working on my dreams, my aspirations and my area of interest. That is so cool. I mean, it's a mark of true leader. And I'm pretty sure कि बहुत लोगों के लिए, because मेरी journey में भी मैंने ऐसा देखा कि I was never supposed to be in this whole thing, but I was like thrown into it, so I'm going through it, and hands-on experience is the best Sometimes experience. it's good, right? Exactly. Sometimes आपको बाद में पता चलता है, but ये अच्छा होता है. मतलब मैं लीडर ही आज इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लीड करने का मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला. But I think it's a mark of a born leader who has this thing कि अगर मैंने किसी टीम को यहाँ पे अपने साथ लाया है, so accountability and वो responsibility होना कि I need to take this forward. आप पे वरना लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कभी भी. जैसे आपको छोड़ा गया, आप किसी को छोड़ दोगे तो there is no value and respect left in the industry. Yes, you will the part of the industry जिनके बारे में gossip होती है, बातें होती है. टचवुड मैंने प्रॉफिट अर्न किया हो ना किया हो, सक्सेस अर्न की हो नहीं की हो, आई एम वेरी श्योर कि मेरे साथ जिन लोगों ने भी टीम में काम किया है, आज वो मेरे साथ हो भी ना हो, बट मैंने कभी आई एम वेरी श्योर कि मैं एक कॉल करूंगी, दे विल बी देयर फॉर श्योर. आई हैव अर्न दैट फॉर श्योर. बस और क्या चाहिए? this is the thing that we need in life. We need to earn this only, this respect and this reverence from people. But enough about obviously that.
but now you are saying that you finally pulled the attention towards yourself, because I know for a fact that being a founder, you know, and an entrepreneur, it's a 24/7 job. Yes. You are not getting out of it because it's your baby. You're working on it 24/7. But finally you've got chance to focus on yourself, which is so rare. So I looked into your profile, and the first thing that caught my eye was the bio. And it was saying that I'm grateful that social media is not my bread and butter. That is, I think, the one thing that I really felt from that whole statement was, you know, मैंने इतने लोगों के साथ बैठी हूँ, and they are always so concerned. They say कि हम बहुत balance कर रहे हैं and everything, but then I also feel कि somewhere they have that, you know, intensity कि अगर 5 followers भी कम हो गए तो उनको अचानक से लगता है कि क्या हो रहा है. And you are someone who's just straight away put it out there कि भाई मुझे actually में फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए एक means है, मेरे लिए मेरा ब्रेड एंड बटर एक्चुअली मेरा फैशन मेरे लिए सब कुछ है ऑनेस्टली. मतलब आई कैन लिव विदाउट क्लोथ्स. मुझे लगता है मेरी सांस अटक जाएगी, मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे कपड़ों के बिना मतलब मेरे को शायद कुछ फोबिया है कि अगर मैंने एक ड्रेस पहन ली मुझे दूसरी बार पहनने में मौत आएगी. मुझे ज्वेलरी नहीं चाहिए, मुझे सेक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस कपड़े चाहिए. मुझे हर चीज में अच्छे कपड़े चाहिए. तो वो चीज है. एंड मैं पहले बहुत कॉन्शियस होती थी कि यू नो मुझे अगर कपड़े चाहिए तो मुझे अर्न करना पड़ेगा, मुझे सब करना पड़ेगा, मुझे वो काम भी करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना है. हाँ. Sometimes you No, have that's to very do true. that. Sometimes you have to do things. जब मैं अपने आप से बात करना सीखी, जब मैं अपने आप के लिए ग्रेटफुल होना सीखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम सो अनग्रेटफुल फॉर द रिसोर्सेज एंड फॉर द पीपल आई हैव इन माई लाइफ. क्योंकि आप अपने आप को जब टेंशन देते हो ना, आप अपने आसपास वाले लोगों को भी टेंशन देते हो फॉर श्योर. Yes, absolutely. तो टचवुड भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से मैं अच्छी फैमिली से हूँ और मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं. मेरा हर चीज़ मुझे बहुत पैम्पर करके रखते हैं. इज़ अ ट्रू जेंटलमैन. तो मुझे सोचा मैं क्यों इतनी टेंशन लेती हूँ. मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे करना ही नहीं है या जो मेरे अंदर से नहीं हो रहा. और जो काम आप अंदर से जबरदस्ती करते हो ना वो दिखता है आपके काम में. Very true. तो बस मैंने छोड़ दिया, सब टेंशन ही लेना छोड़ दिया. मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बिल देती हूँ आप सबको, ये रहे बिल, कर लो, इसका और कुछ नहीं है. Yes. और मैं अपने आप को प्रॉमिस कर चुकी हूँ मैं वही काम करूंगी जो मुझे करना है, जो जिस लेवल, जब मुझे मेरा टिकट प्राइस मिलेगा, मेरी वैल्यू मेरी रिस्पेक्टेबल पे मिलेगी, देन आई विल वर्क प्रोफेशनली. Very true. टिल देन आई विल वर्क ऑन माई फैशन थिंग. मैं उसमें ग्रो करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कहीं देखना चाहती हूँ, मैं अपने आप को लेवल अप करना चाहती हूँ. बट मुझे पता है टेंशन से तो कुछ नहीं होने वाला. तो मतलब कई लोग मुझे बोलते भी हैं, ट्रॉल भी करते हैं, यू नो, इन माय इंडस्ट्री की ये तो गोल्ड डिगर है, ये तो अपने बाप के पैसे पे होती है. हूँ भाई, जो भी है सामने है. एटलीस्ट आई एम नॉट. मेरे पति ने बनाया मुझे गोल्ड नहीं, मुझे डायमंड सॉलिटेयर डिगर बनाया है. That's for you guys. But I want to ask कि in this social media game, okay, people who are running behind, मतलब वो जो होता है ना कि followers हैं तो फिर थ्रू टैलेंट की एक्चुअली कदर होती है, ऐसा बोलते हैं उन लोग कि अगर फॉलोअर्स है तो फिर तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तुम्हें काम मिलेगा एंड ऑल दैट स्टफ. वो इंडस्ट्री में एक्चुअली अपेरेंट है. While casting also and everything, we see that happening, that people go towards followers and everything. So do you think this is the right process of actually judging through talent? Because so many people are talented, they might not have followers. अनफॉर्चुनेटली ना ये मैंने भी देखा है कि अगर आपके फॉलोअर्स हैं, रीच है, तो आपको काम मिलता है. मतलब मुझे मैं कितनी बार मुझे बुरा लगता है, ऑनेस्टली बुरा लगता है कि मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरी प्रोडक्शन अच्छी है, बट जिन्होंने मेहनत ही नहीं किया दे आर गेटिंग वर्क जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए. बट देन कई बार मेरा दिमाग भी घूमा है. इवेंचुअली जब मैं बहुत अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठने बैठने लग गई, जब मैंने जिस लेवल पे काम करना है वहाँ से R&D करना शुरू करा, क्वालिटेटिव में क्वांटिटी होती ही नहीं है. Absolutely. बहुत अच्छे डिजाइनर्स, बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट, बहुत अच्छे फैशन इंस्टा व्हाटएवर यू कैन कॉल देम, उनके आप देखोगे कभी एरे गहरे फॉलोज होंगे ही नहीं. उनका कॉन्सेप्ट क्योंकि सबके समझ में आएगा भी नहीं. तो वो रिलेटेबल नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं होगा. तो आपकी चॉइस, आप कहाँ जाना चाहते हो. यू नो, यू वांट टू वर्क इन अ मास और यू वांट टू वर्क इन अ बहुत एक बोल में, या कहाँ काम करना चाहिए. इट्स योर चॉइस.
मुझे दोनों चाहिए, तो मैं वो So फिगर you आउट want कर रही niche हूँ। also and you want mass also. यस, बट Right. मुझे मास बेमतलब का भी नहीं चाहिए। Right. मैं, आप मानोगे नहीं, मैं हर दिन अपने अकाउंट से ना करते करते 50 फॉलोअर्स रिमूव करती हूँ, जो बहुत, पहली बात तो ना वो मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते, ना मैं उनको जानती, ना उनके डीएम्स इतने बकवास होते हैं या फिर कुछ भी होता है ऐसा वैसा, या डीएक्टिवेट अकाउंट्स होते हैं वो, जो कभी बने होंगे और And now it's not working anymore. Yes. Obviously. Wow, that's a new thing. मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोलते हुए सुना है कि they actually go ahead and remove followers because they do not connect with them and they do not connect with that personality. I mean that takes a lot, especially because you're someone who's also like really doing a lot of hard work towards your profession and making sure that you're out there in front of people. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है. So that's really cool. But I want to know कि right now that we are talking about social media, we always tell people कि you don't give up hope. इस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में आप हो, चाहे वो एज अ क्रिएटर हो, एज अ इन्फ्लुएंसर हो, एज एन एक्टर हो, किसी भी मीडियम में हो, ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है and there's so much of clutter, there's so much of noise. What is that one thing from your experience, because you, as you said कि मैं पहले एक अलग तरीके की इंसान थी, I used to always run behind, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी for a lot of things, but then I thought कि जो मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे दिया है, that I'm born with, I need to appreciate that also, and that's a very good thing. And now you're very unapologetic about appreciating those people in your life and what they do for you. So now towards those people who might not have those resources, who might not have those followers, they might not have the opportunities, but they dream big in their life and they want to go out there, they want to do something for themselves, but maybe somewhere they are giving up hope. So what would you tell them? मैंने भी एक टाइम पे ना कपड़े लेने के लिए 5 रुपए की बस में ट्रैवल किया है, लिटरली किया है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ थाली में ही मिला है। You just need to manifest and have like that vision. जो आप विजन माइंड में रखोगे ना, वैसे आपकी बॉडी एंड माइंड वर्क करेगा फॉर श्योर। अगर आपका विजन ही यही है कि मुझे क्वालिटी की आइसक्रीम खानी है, तो आप क्वालिटी की खा के सोओगे। अगर आपका विजन है कि मुझे एक अच्छे 5 स्टार होटल की खानी है, लाइक 2000 की आइसक्रीम खानी है, आप आज नहीं खाओगे, आप 3 महीने बाद जरूर खा लो, पक्का खा लोगे। तो ये आपके विजन है, आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपके और के सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है जो मैं अपने हर एक बंदे को बोलती हूँ जो मेरे आसपास है। 5 लोग देखो आपके आसपास कौन है, वो 5 लोग आपकी लाइफ डिफाइन करेंगे। वो रोने धोने वाले हैं, वो अच्छे हैं, वो हाई विजन वाले हैं, वो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, वो बैड इन्फ्लुएंस है, गुड इन्फ्लुएंस है, जो भी है ना, वो आपकी लाइफ। वाओ, पक्का वो लाइफ है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे बचपन के भी दोस्त चाहिए, मुझे कॉलेज के भी दोस्त चाहिए और मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, यू आर गोइंग नोवेयर, ट्रस्ट। Absolutely. The people you surround with makes your journey. Absolutely. मुझे कितने लोग बोलते हैं कि मुझ में एटीट्यूड आ गया है या वो आ गया है, कुछ भी मतलब बोलते हैं, एंड लिटरली बिलीव मी, आई हैव माय चैट्स। अगर कोई मुझे 10 साल पुराना दोस्त भी रीच करता है, तो मैं उसको वैसे ही अप्रिशिएट करती हूँ जैसे मैं उसको 10 साल पहले ही करती थी, बट मैं उसका थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकती। Absolutely. अगर वो मेरे को ही वाइब दे रहा है कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ, तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि भाई तू ही मेरे लिए मैनिफेस्ट कर रहा है यूनिवर्स में कि मैं बड़ी बन गई हूँ, तो इट्स गुड फॉर मी। बट हाँ, आई मेक श्योर कि अगर मुझे आज यहाँ बैठने की नीड है तो मैं यहाँ पे होंगी, अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लूंगी उस चीज के लिए। और ये मैं सबको ही बोलूंगी, एंड मेरे साथ कितने लोग हैं जो मेरे से बहुत ऊपर जा चुके हैं, मैं उनको भी वही एप्रिसिएशन देती हूँ जो मुझे चाहिए लाइफ में। Absolutely. तो ये थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। होप अपने आप आ जाती है, वाइब अपने आप बन जाती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है, बस आपको अपने आप को बहुत ठीक रखना पड़ता है। यू आर योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता सिवाय आप खुद के जुनून। ये बस आपको याद रखना है। Absolutely. I think I completely agree with the fact कि अगर आपको लेवल अप करना है अपने लाइफ में, तो you need to
मतलब वो एक जो जगह है वो उस कंफर्ट को छोड़ के आपको अपने सराउंडिंग्स को भी लेवल अप करना जरूरी है. ओनली देन यू विल गेट दोज अपॉर्चुनिटीज दैट दे आर यस गेटिंग. यस या अगर मेरे पापा मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करे, मेरी टीम भी मुझे सपोर्ट करी है, बट करूंगी तो मैं ही ना. Absolutely, yeah. आई At the कैन end of the जस्ट day, it अप्रिशिएट will देम be. लाइक दिस कि हाँ यार थैंक यू कि आप मेरे साथ हो. बट at the end of the day वो आपके ही ब्रेन्स होंगे, वो आपका टैलेंट होगा, एग्जैक्टली. आपकी क्रिएटिविटी होगी जो एक्चुअली में उस कंटेंट को उस हाँ तरीके से हाँ. निकालेगा. तो अपने आप को भी अप्रिशिएट करो और सामने वाले को भी. ये मत करो कि सामने वाला आप पे एहसान जता के जा रहा है कि मैंने ये किया. अगर एहसान ही रखना था तो अपने पास रखो. बस खत्म बात. वहाँ पे कर दिया ना, भूल जा. मैं भी भूल गई, तू भी भूल जा. But you know, when we see people going to extreme lengths, मतलब कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो एक 1 minute फेम के लिए you go to extreme lengths, you try to do things which you are not, which I think is morally incorrect, and maybe even gives out a very wrong message to other people who are also a little, you know, you really working hard towards getting that kind of attention, and not for 1 minute. They want to be famous for more time. They want to get that popularity, make things for themselves happen. So do you believe कि कभी वो ऐसा चांस आया या वो अपॉर्चुनिटी आई, वो एक टर्निंग पॉइंट आया जिंदगी में जहाँ पे यू थॉट कि यार मे भी मुझे कर लेना चाहिए, मुझे भी ऐसे एक्सट्रीम लेंस में जाना चाहिए ताकि मुझे वो चीज़ मिल सके जो मैं चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि कभी कभार हम हो जाते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफेयर है. Why are they getting what I can also get? Because I'm also putting my 100% effort. Have you ever felt that? लकीली मेरे आसपास लोग अच्छे रहे हैं, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने अनएथिकल वेज अपनाए हो या कुछ भी ऐसा किया हो. टचवुड मेरी अपब्रिंगिंग भी ऐसे, मैंने कभी अनएथिकल वेज नहीं अप्रिशिएट किया. हाँ मैंने ये जो किया होगा कि मैंने शॉर्टकट इस उस पर अपनाए होंगे कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो आई विल इन्वेस्ट मोर देन इट्स बी नीडेड देयर. चाहे मेरा टाइम हो, चाहे मेरे पैसे हो, चाहे मेरा एफर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, बट आई विल नॉट डू द अनएथिकल वे. आई विल नॉट डू इट इन अनएथिकल वे. और अगर किसी और को भी मैं देखती हूँ तो मैं बस एक बार वार्न कर देती हूँ सामने वाले को कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे को वाइब नहीं आ रही. हाँ. मैं उस बंदे को नहीं बोलती कि तेरे एक्शंस गलत है, मैं बोलती कि ये मेरी वाइब है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बाकी तू देख ले. फिर उनकी अपनी डेस्टिनी. Absolutely. और जिन लोगों का मैंने देखा है कि अगर बहुत अनएथिकल वे से आगे भी बढ़ते हैं, उनका शॉर्ट ही होता है. अगर वो शॉर्टकट से, तो शॉर्ट सक्सेस ही होता है उनका. लॉन्ग सक्सेस हो ही नहीं सकता है. मैं Very नहीं true. मान सकती हो सकता है. Very true. Very यू true. कैन ब्रेक द रूल ऑफ यूनिवर्स. Very true. But I heard that you were supposed to be in Cannes, यस but your visa got rejected. यस. What was that all about exactly? लक नहीं था, शायद किस्मत में नहीं होगा. जबकि मैं पिछले साल ही पूरा यूरोप ट्रिप होके आई हूँ. मेरा यूएस वीज़ा लगा हुआ है. मैं उस जगह जा चुकी हूँ, बट आई गेस कि ये बहुत इम्प्रॉम्प्ट था. एंड देयर आर सम रूल्स रेगुलेशन अबाउट शेंगन वीज़ा कि इतना टाइम पहले आपको अप्लाई करना चाहिए या कुछ होगा, कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा. इट वाज नॉट मेंट टू बी, आई गेस. बट I mean, हाँ you're so peaceful with this whole thing. वो हो गया. मैं हील हो गई. मैंने टाइम लिया है उस चीज से हील होने के लिए कि हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते. Very big opportunity. Yes. But I really hope that it happens for you. शायद उससे बड़ी आनी होगी, इसलिए नहीं हुआ होगा. That is such a good mindset. यस. I mean, are you spiritually inclined? हाँ. Like, are you very spiritual in life? Because इतना peace, मतलब मैं उस तरीके से, हाँ मेरे जिंदगी में और कुछ बड़ा आने वाला है, इट्स ओके, मैं ये इसके लिए वेट कर सकती हूँ, ये अपने टाइम पे आएगा. आई वाज लाइक अ फॉर्मर न्यूमरोलॉजिस्ट 3-4 years. वाह. मैं अपना सेशन करा लूँ. मैं ऑलरेडी कर ली, किसी का करके आई हूँ. वाह, lucky you. But seriously, wow. Yes. No wonder. I mean, this is like seriously. But इसीलिए you are so powerful when it comes to your manifestation, and you are like कि मुझे अगर ये चाहिए तो मैं ये करके रहूंगी, and वो होगा मेरे साथ. I will make it happen. I mean that. टचवुड न्यूमरोलॉजी ने मुझे एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट जरूर दिया किसी भी चीज से निकलने का. Wow. लाइक जिन चीज़ों से मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं निकल पाऊंगी इससे कभी, तो एक टाइम के बाद मुझे सच में मेरी बॉडी में भी नहीं है वो फीलिंग, वाइब, एनर्जी, कुछ भी नहीं है. आई ऑलवेज
सीक अपॉन दिस थिंग कि आज क्या करना है यार, और कल का दिन क्या है, मेरा स्केड्यूल क्या है, मैं वेली तो नहीं हूँ, वेली हूँ तो उसमें भी वेलापन को कैसे इफेक्टिव करना है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। आई ऑलवेज बी लाइक दिस कि ठीक है, कुछ नहीं होता, मेडिटेशन कर लो, बुक पढ़ लो, कुछ तो करो। Productive mindset. That's really यस, nice. मतलब वेस्ट क्यों करना है ये टाइम। Why I need to adapt this quality. आप I जितना need to get it खाली from you. रहोगे ना उतना नेगेटिव रहोगे। Why? I mean, बहुत मुझे भी ऐसा लगता है बिकॉज जब मैं काम नहीं कर रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करो, बट रेस्ट करने, रेस्टिंग में भी अब पॉजिटिविटी वही। होना चाहिए। मुझे चाहिए मैं रेस्ट कर रही हूँ, मेरे साइड में खुशबू हो, कोई कैंडल्स हो या Yeah. कुछ हो, कुछ नहीं भी At हो least तो you're working on yourself Yes, constantly. That is a yes, constant process. yes. That doesn't stop. मेरे स्टूडियो में एक रूल है, अगर मुझे घुसते ही मुझे फ्रेग्रेंस नहीं आई, मेरा वो तांडव रूप देख लेते हैं उस दिन। उस चीज में तो मेरा तांडव रूप देख लेते हैं कि दिस इज नॉट द थिंग जो मैं एक्सेप्ट करूंगी कभी, बिकॉज if there is a good smell around you, you automatically cools down. Of course, you start feeling good about yourself. You start feeling good about the environment that you are in. और वो एक मतलब वो होता है ना, एक एटमोसफियर बन जाता है एंड यू आर लाइक कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब Exactly. कितने खुश होंगे तुम्हारे टीम वाले तुम्हारे साथ। आई मीन मुझे सिर्फ ये जानना है कि बताओ भाई, मुझे बताओ। but as a person who's having their own, as a founder, having your own team that you're guiding and you're leading, plus you're working on yourself, and over there also obviously you are working alongside a lot of people, but and then you're working on yourself as well. तो मुझे से जानना है कि ये जो हसलिंग कल्चर है that we like make sure कि वो बहुत rewarding feel हो and we avoid that fact, जैसे millennials होते हैं उन लोग hustling में बहुत believe करते हैं that we will keep working hard until and unless we are completely burned out. And then there are these next generations जिन लोग बहुत ही ऐसे cool है, उन लोग हर एक उनका एक mental health day भी हो जाता है मतलब हफ्ते में। तो how do you balance that whole hustling culture out in your life? मैं निकाल देती हूँ, अगर मुझे आप पे गुस्सा आएगा ना, मैं वेट नहीं करूंगी, एक मुहूर्त नहीं निकालूंगी उसको निकालने का, मैं ऑन द स्पॉट निकाल दूँ। अच्छा। लिटरली मैं इतना गुस्सा अगर मुझे आ रहा है तो वो गुस्सा मेरा अब भी निकलेगा, मैं वेट नहीं करूंगी उस चीज का। तो मैं अपने आप को खाली करके अगर मुझे एक बंदे से प्रॉब्लम है, मैं मुझे नहीं फर्क पड़ता वो किस पोजीशन पे है, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो कहाँ है क्या नहीं है, मेरा दिमाग उससे ज्यादा महंगा है। मेरे दिमाग को अगर तुम डिस्टर्ब करके गए हो तो लेके जाओ अपना ये भारीपन बोझ। एंड अगेन आई एम ब्लेस्ड विद पीपल। मेरे फादर ने हमेशा मुझे संभाला है, तो मैं बहुत एग्रेसिव लड़की थी बचपन में। हाँ, बहुत एग्रेसिव, मुझे नहीं लग रहा देख के। बहुत एग्रेसिव। आई टेल यू, मुझे अपने गुस्से से ही डर लग जाता था, मुझे लगता था कि मैं कुछ कर दूंगी मैं। Oh my God. मुझे इतना गुस्सा आता था, तो मेरे पापा ने मुझे हमेशा शांत करा है। सेम माय हस्बैंड एक्सेप्टेड इट कि जब मुझे गुस्सा आता है, आई डोंट थिंक सो आई शुड से दिस, मैं मार भी देती हूँ मैं लिटरली, एंड ही नेवर टेक इट ऑन अ I'm ईगो। trying to imagine वो vision लाने की कोशिश कर रही हूँ Yes. because she is so sweet. I can't imagine about the fact that she is hitting someone. Oh God. नहीं, बट ही होल्ड मी लाइक दिस कि मार ले, बस शांत हो जा, तू हाथ में आ जा, तू बस अभी शांत हो जा। और मैं सोचती हूँ तू ऐसे करेगा तो मुझे और गुस्सा आएगा, मुझसे लड़ बैठ के और वैसे होता है मेरी माँ। और फिर अगर वो शांत बैठ गया, वो बस सुन रहा है, तो मुझे और गुस्सा आएगा, तुम बोल ही नहीं रहे हो कुछ, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो वो भी फेज आता है, वो इट्स वेरी नॉर्मल। बट पॉइंट इज कि सामने वाला मुझे वो वाइब दे रहा है जो मुझे शांत कर रही है, तो अपना आप शांत हो जाते हो। तभी मैंने बोला आप बहुत मैटर करते, आपके 5 लोग कौन है आसपास, Absolutely. वो आपकी लाइफ है। मेरे आसपास वो लोग हैं जो मुझे शांत करना चाहते हैं और उनको मैं करना चाहती हूँ। इसलिए मेरी गाड़ी चल रही है ऐसे, मेरे टीम मेंबर्स भी ऐसे कि अगर मैं गुस्से में हूँ, आई स्वेयर आई कैन बेट ऑन दिस, पीठ पीछे कोई नहीं बोलेगा मेरे बारे में, चाहे मैं उनको मार भी दूँ, लिटरली कोई नहीं बोलेगा। उनको पता है कि अगर ये इस लेवल पे है ना, तो अभी रुक जाओ। देन दे गोना कम इन द इवनिंग विद अ बॉटल ऑफ शैंपेन, मैम निकल गया गुस्सा। Literally, and my friends also, they keep on calling me, they keep on pampering me. तो बट इस चीज पे आने के लिए मैंने बहुत फ्रेंड्स सैक्रिफाइस किए, बहुत लोग, बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत
बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ झेला है. आई वॉज इन अ वेरी बैड रिलेशन ऑल्सो. आई वॉज लाइक वेरी, आई कुड से दैट आई वॉज इन अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप. तो बहुत वो जर्नी ऐसी रही है, और कॉन्सेप्ट हट गया था मेरी लाइफ से ना. एक ट्रू रिलेशन, एक प्यार, एक दोस्ती का, एक अच्छेपन का, ह्यूमैनिटी का. बिजनेस में फिर बहुत ऐसे उटपटांग लोग मिले मुझे, जो मेरा यूज करके चले गए, जिन्होंने मुझे ही एडिक्ट करके मुझे ही पागल साबित कर दिया, मुझे ही बेवकूफ साबित कर दिया. देन ऑल्सो पता नहीं, बाय गॉड ब्लेसिंग्स मैं बढ़ती रही. बाय गॉड ब्लेसिंग्स मुझे पता है कि मेरे लिए ये चीज़ होती है कि मैंने अपने माइंड सेट बहुत स्ट्रांग रखा था कि मेरे को अपनी लाइफ की वैल्यू चाहिए. मुझे कुछ तो Absolutely. ऐसा करना है जिससे मेरी लाइफ की वैल्यू हो. मैंने वो होप नहीं छोड़ी कभी. I think that is what is aspiration. कि at the end of the day you did not give up on what you were feeling was right for you, and you kept believing कि नहीं ये होना है तो हम ये करके दिखाएंगे, चाहे वो Yes. कुछ भी मुझे उस चीज के लिए क्यों करके sacrifice दिखाना है? करना अपने पड़ा. लिए करो. करके भी क्यों Exactly. दिखाना? मैं कह रही हूँ, मेरे सामने अगर मोदी जी भी बैठे हैं तो वो मेरी वैल्यू कैसे करेंगे अगर मैं ही नहीं कर रही हूँ अपनी. That is something so right. If you can't Yes. value yourself, how are you expecting other people to value एग्जैक्टली. you? तो Obviously. वो डर और वो आपको वही बताएगा, या ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, वो तभी होता है जब आपको अपने बारे में ज्यादा पता नहीं होता. Right. अगर आपको ये फील हो रहा है तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू दैट यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट. आपको नहीं पता है. आपको ना अपनी लाइन ऊपर की पता ना नीचे की पता. True. Very true. पहले वो सोचो, फिर सब नॉर्मलाइज हो जाएगा. जो लोग आगे बढ़े वो भी तो कभी ना कभी नॉर्मल थे. कितने एग्जाम्पल्स है हमारे पास, Absolutely. कितने हैं. Very true. स्पेशली मोदी जी हो गए. इवन आई डोंट थिंक सो करण जौहर सर की कोई था, मुझे पता नहीं है. बट मैं सिर्फ करण सर को जानती हूँ, मैं सिर्फ मनीष सर को जानती हूँ. उनके नाम है, अगर उनकी कोई लेगेसी होगी भी आई डोंट नो दैट. बट बैठे हैं ना आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. यू नेम अ इन्फ्लुएंसर. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आशना श्रॉफ. I love her style, very very connectable and at the same time very chic, luxury and everything. तो बैठी है ना वो भी यहाँ पे. Absolutely. Very true. Very true. I completely Yes. agree with you. You were talking about relationships, and मुझे ऐसा लगा कि I think you will be the perfect person to ask this question. You found true love in your life, as you told, and they were so cute moments that you have with your husband. And in marriages, through love, I feel in today's time is very important to keep it connected. टू पीपल, उनको साथ में कनेक्ट करके रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम लोग ऐसे जनरेशन में हैं जहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं. एंड मे बी दैट इज व्हाई आई फील, आई माइट बी रॉन्ग, कि मैरिजेस टिकते नहीं है आजकल. बट अकॉर्डिंग टू यू, इज दिस ऑल्सो द सेम रीजन कि मैरिजेस इसलिए नहीं टिकते बिकॉज वो जो पेशेंस चाहिए होता है, जिससे आप जैसे उनको संभालते हैं और वो जैसे आपको संभालते हैं, तो वो जो पेशेंस चाहिए होता है, वो जो टॉलरेंस चाहिए होता है टू understand that even these red flags can be turned into something which we can like work upon, and there is growth in love. Do you think is that the reason why marriages don't work these days? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबके शायद अलग अलग फैक्टर्स होते हैं. मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में लोगों को बोलते सुना है कि प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट होती है कभी कभार जो वर्क करती है रिलेशनशिप में. नहीं, बहुत फैक्टर्स होते हैं. आपका दोनों की फैमिली का इन्वायरमेंट, दोनों का वर्क, दोनों के एटिकेट्स, दोनों का डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, दोनों का लाइफस्टाइल. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एक्सेप्टेंस इज अ की. सामने मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलने लायक भी नहीं शायद. मैं तो बहुत बड़ी रेड फ्लैग थी अपने हस्बैंड के लिए. No, but you've also experienced something previously. और उसकी वजह से मैं बहुत बड़ी रेड फ्लैग थी उसके लिए. मतलब obviously शायद उसको सब बोलते होंगे कि पागल है जो इसके बारे में सोच रहा है. तो बट ही नेवर गिव अप ऑन मी, नेवर. और आज जैसे कि मैं बल्कि उसके टाइम के लिए चेज करती हूँ यार, और मैं मिस कर रही हूँ, तो मैं जस्ट स्पेंड टाइम विद मी. वो इसलिए आ पाया बिकॉज हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया. द वे वी आर, द वे वी लिव, द वे आवर पेरेंट्स आर, द वे जो भी हमारा कनेक्टेड है, मतलब जो भी हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो हमने एक दूसरे का कर लिया है कि हाँ भाई यही है. हम लिटरली एक घर में रहते हुए, एक रूम में रहते हुए, बहुत बार ऐसा होता है हम एक हफ्ते बात नहीं करते बिकॉज हमारे वर्किंग आवर्स बहुत अलग है. मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, वो 4 बजे सोता है. Oh my God. यस, मैं अर्ली बर्ड पर्सन हूँ. मुझे 10 बजे सोना पसंद है, मुझे 5 बजे उठना पसंद है. और ये बहुत बहुत
टाइम लगा है इस क्राइटेरिया को बिठाने में मुझे अपनी लाइफ में, वो उसका कोई टाइम ही नहीं है. ही स्टार्ट वर्क लाइक लेट इन द नून एंड इट गोज ऑन. उसका काम ऐसा है कि सुबह उसका काम अटेंशन नहीं मांगता है, ही स्टिंग कैन हैंडल, बट शाम को मांगता है अटेंशन. कई बार शुरू में हुआ था 2-3 दिन, देन आई वाज रियली फाइन कि अब तो ये है, अब क्या करोगे लड़के, हाँ. करोगे अपना ही दिमाग खराब करोगे. ऐसा तो है नहीं कि वो काम पे नहीं जाएगा या मैं काम पे नहीं जाऊंगी, या फिर अगर आप उससे डिमांड कर रहे हो तो आप भी तो कर सकते हो ना कि आप अपने वर्किंग आवर शिफ्ट कर दो. मैं भी तो नहीं कर रही हूँ ना. Right. तो व्हाई टू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर कि वो बंदा करेगा. So you just found a middle ground जहाँ पे तुम लोग दोनों एक जगह पे कहीं पे कनेक्ट कर सको, जहाँ पे both of you can इन give दैट time to कुछ each other. मैटर नहीं करता. इन दैट ये मैटर करता है कि आप क्या सेफ फील करते हो उस रिलेशन में. Right. और वो सामने वाले पे मत छोड़ो, आपने क्या किया उस रिलेशनशिप में. कई बार Right. मैं जब न्यूमोलॉजिस्ट थी मुझे बहुत केसेस आते हैं, मैं तो कर करके थक गई, सामने वाला नहीं करता है, सामने वाला उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता. हाँ. 2 चॉइस है, या तो गिव अप मत करो या छोड़ो ना. फिर अब तुम बेवकूफ होके वहां पे निभाना भी चाहते हो और फिर तुम उसके लिए कुछ एफर्ट भी नहीं करना चाहते, तुम बस रोना चाहते हो, तो नहीं वर्क कर सकता. Right. एक ना एक चीज करनी पड़ेगी. आई एम सेइंग ना, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर 3 साल काम किया है. वी वर नेवर इन अ रिलेशनशिप, यू नो, दिस इज लाइक अरेंज मैरिज, बट वी नो ईच अदर लाइक फ्रॉम लास्ट 3-4 years. तो उसने मेरे ऊपर 3 साल की है मेहनत, मेरे पे गिव अप नहीं किया है, तब जाके हम यहाँ पे. जबकि हमारा कल्चर बहुत अलग है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है, हम लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस बहुत अलग है, हम दोनों का सब कुछ ही अलग है. देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन अस. एक चीज नहीं है हमारे बीच में कॉमन. और ऐसा भी कुछ नहीं है अपोजिट अट्रैक्ट्स. हम दोनों एक दूसरे को अनॉय करना भी बहुत इजीली जानते हैं. सब कुछ है, डिसरिस्पेक्ट भी है, अनॉयनेस भी है, यू नेम अ थिंग. हम दोनों एक दूसरे को मार भी चुके हैं लिटरली. हम But still you have भाई connected बहनों की with तरह each एक दूसरे पे other. हाथ भी उठा चुके हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं. बट इन द एंड हमें ये पता है कि अलग तो नहीं होना है ना. ये दोनों का कांस्टेंट है कि अलग नहीं होना है. जब आपका दोनों का एक सेम वाइब होता है, यू मेक इट वर्क. True, very true. यस. At the end of the day, you make it work. यस. दोनों का इंटेंशन सेम होना चाहिए टेबल पे. Very true, very true. But lastly, before we move on to the fun part, जैसे कि मैंने बताया था, I want to know कि what do you manifest for yourself from this moment onwards? Because there's a lot of things that you've already gained. But what is that next thing, that you big thing that you're manifesting for yourself? I really looking myself to work in a real fashion industry, you know. Recently मैंने अपनी पढ़ाई complete की है from London. And like recently 1 month ago only, so I saw the real fashion things जो मैंने दिल्ली में देखी ही नहीं है. दिल्ली में क्या मैंने शायद इंडिया में नहीं देखी है. the process, the algorithm, the vibe. मुझे उस एक्चुअल वाइब में काम करना है. मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं मतलब मेरे पास फॉलोअर्स होना हो, मुझे उस क्वालिटी में काम करना है. मुझे एक्चुअली वो अपना दिमाग चलाना है, मुझे अपना वहाँ पे प्रोडक्शन देना है, मुझे अपना वहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड करना है. बल्कि मुझे लगा था कि मैं लंदन से आके बहुत ऐसे धड़ कंटेंट बनाऊंगी, और मैं एकदम से ठहराव में आ गई हूँ. बल्कि वहाँ से क्या, ये चीज़ तो बहुत R&D लेगी, अभी मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज़ के साथ. मैं अपने आप को वहाँ देख रही हूँ कि आई शुड नो. मुझे लगता है मैं इतने ब्रांड्स, इतने डिजाइनर, अच्छे लोगों के नाम तक नहीं पता है मुझे अभी. एंड आई एक्सेप्ट इट. मुझे नहीं पता है. आई वांट टू नो दैट थिंग. मुझे अगर अपने आप को फैशन में कुछ बुलाना है ना, मैंने अपने आप को कभी फैशन क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर नहीं बुलाया अब तक, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट आई डिजर्व दैट राइट नाउ. मैं तब ये डिजर्व करूँ जब मैं एक्चुअली क्रिएट करनी कुछ न्यू. अभी तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूजुअली, मैंने ले लिया, मैंने पहन लिया और कर लिया. Exactly. That what every creator is doing. But अपना कुछ इनोवेट करना अभी तक मैंने यहाँ देखा नहीं है, और मैंने किया खुद भी नहीं है. जो मैं देख के आई हूँ, तो something like that I'm hopefully that I'll work on. And obviously I want to have a very good luxurious and spiritual life altogether. I hope that comes true for you. Thanks. And I hope to see you in the place that you want for yourself, or you are manifesting for yourself. That because only then I know that you'll be more happy. Yes. And that is the most important thing in life.
Well, thank you so much, Anisha, for being on Pop Diaries and having this conversation with us. I think I'm taking away a lot on the fact कि मुझे it was like वो ना होता है ना जहाँ पे हम लोग सुनते हैं जो हम लोग के पर्सनालिटीज को अच्छा बनाती है, तो वो सारे बुक्स हम लोग मोटिवेशनल बुक्स वो सारी चीजें पढ़ते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल वैसा था that's जहाँ पे मुझे पता चला कि सराउंड योरसेल्फ विद 5 गुड पीपल हु आर गोइंग टू अपलिफ्ट यू इन लाइफ एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक कि हाँ मैं तो ना सोचना शुरू करी मेरे आजू बाजू कौन है कि अभी किसको निकालना है बताओ। तो मतलब मैं वही सोच रही हूँ एंड आई एम लाइक कि थैंक गॉड दैट आई एम एक्चुअली ऑलरेडी वर्किंग अननोइंगली एंड unintentionally I'm also already working on that very thought that I want to protect myself and put myself in between people who can only uplift me and also bring me peace, just like how you have done. So thank you so much for your advices, thank you so much for sharing your story with us, and I'm sure that people are going to start looking at you also very differently and they will also take away the same thing that I have. So thank you so much, Anisha, for being on Pop Diaries. And this was me, Manjari Mukherjee, only on Pop Diaries channel. Like, share, subscribe, and don't forget to click on that bell icon. Definitely don't forget to comment and let me know what you loved about Anisha. I love everything. Bye.